एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ऑनरेबल आपको बोलने का मौका दूंगा बजट के बाद, माननीय वित्त मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर, I present the budget for the year 2021-2022. As introduction, Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country or a region within a country. But what we have endured with COVID-19 through 2020 is sui generis. When I presented the budget 2020-2021, we could not have imagined that the global economy, already in throes of a slowdown, would be pushed into an unprecedented contraction. We could not have also imagined then that our people, as those in other countries, would have to endure the loss of near and dear ones and suffer hardships brought about due to a health crisis. The risk of not having a lockdown was far too high. Within 48 hours of declaring a 3-week-long complete lockdown, the Prime Minister announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, valued at 2.76 lakh crores, that provided free food grain to 800 million people, free cooking gas for 80 million families for months, and cash directly to over 400 million farmers, women, elderly, the poor, and the needy. Even as a large section of citizens stayed home, milk, vegetables, fruit suppliers, health and sanitary workers, truck drivers, railways and public transport workers, bank employees, electricity workers, our annadatas, police, firemen and the armed forces all had to go about their work as normal, but with the additional anxiety of the virus hanging over them. We recognize this, and I think I speak on behalf of everybody in this august house when I express my heartfelt gratitude to these men and women for how they were able to carry out their work and duty to provide for the nation's basics over those crucial months. Speaker, sir, for public good, honorable members of parliament and members of legislative assemblies too offered their salaries. In May 2020, the government announced the Atmanirbhar Bharat package. To sustain the recovery further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. As a government, we kept a watch on the situation and were proactive in our responses. The government, led by the Prime Minister, stretched its resources to deliver for most vulnerable sections of our society, the poorest of the poor, the Dalits, the tribals, the elderly, the migrant workers, and our children. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, प्रधानमंत्री Atmanirbhar packages ने दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, बच्चों के लिए खास तौर से योजनाएं बनाई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और उसके बाद जिस तरह की घोषणाएं की गई, उससे वो एक तरह से ऐसे थे जैसे 5 मिनी बजट पेश किए गए हों, 5 मिनी बजट को अपने आप में समाहित करते थे। आत्मनिर्भर पैकेज ने सुधारों को नए सिरे से गति प्रदान की। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, उनका निजीकरण की तरफ हम आगे बढ़े। ये कुछ ऐसे उल्लेखनीय सुधार हैं, रिफॉर्म्स हैं, जो इस दौरान हमने शुरू किए। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इस समय हिंदुस्तान में 2 तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं कोविड-19 के,
Honorable Prime Minister launched the vaccination drive. इससे 2 और उससे ज़्यादा वैक्सीन और ज़्यादा बाजार में आने की उम्मीद की जा रही है। Having said that, we are all reminded हम अपने वैज्ञानिकों का धन्यवाद यहाँ देना चाहेंगे। COVID-19 continues into 2021. Now, just हमारी ये लड़ाई 2021 में कोरोना के खिलाफ चल रही थी और ये लड़ाई अभी भी चल रही है। Political, economic and strategic relations in the post-COVID world are changing. तो कोविड काल के बाद जिस तरह से जो राजनीतिक, आर्थिक और जो रणनीतिक रिश्ते हैं वो पूरी दुनिया में बदल रहे हैं, पूरी दुनिया में बदलाव कर रहे हैं। अब ये वो मौका है, ये वो समय है जब हम नए इरा में, नए युग में अपने आप को शामिल करें। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कविताएं, कुछ शब्द मुझे याद आते हैं। And sings when the dawn is still dark. विश्वास वो पक्षी है जो लाइट को यानी ऊर्जा को एक तरह से महसूस करता है और शाम को जब अंधेरा छाता है तो वो गाता है। इस स्पिरिट में भारत भी अपनी सफलता को देख रहा है, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया में जिस ढंग से भारत की क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया। ये कुल मिलाकर लोगों की उस गुणवत्ता की तरफ इशारा करता है जो युवा है, जो अनसप्रेस्ड है और जो परफॉर्म करना चाहता है। सफलता के लिए ही वो परफॉर्म करना चाहता है। भारत में 112 मिलियन पॉपुलेशन के आधार पर सबसे कम संख्या में मौतें हुई हैं। नए दशक का ये पहला बजट है जिसमें, और ये डिजिटल बजट है जिसमें आर्थिक स्थिति को बहाल करने की कोशिश पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इससे पहले सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ जब बजट उस दौरान आया, उस काल में आया जब इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था थी वो माइनस में चली गई थी, संकुचन की स्थिति में थी। इस समय जो ये संकुचन है ये अर्थव्यवस्था में वैश्विक महामारी के कारण आया है। अन्य देशों की तरह भारत को भी इससे असर से गुजरना पड़ रहा है। मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार पूरी तरह से राज्यों को सपोर्ट करने, सहयोग करने के लिए तैयार है और ये बजट सबके लिए एक आपदा में अवसर की तरह आ रहा है और आर्थिक स्थिति को में ग्रोथ यानी विकास को, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। 50 years of the 1971 India-Pakistan war. It will be the year of 75 साल हो रहे हैं भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के। 2021 कई वर्षों में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। 8वीं जनगणना इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत में होगी। हरिद्वार में महाकुंभ भी इस साल होने वाला है। भारत ब्रिक्स की जो संस्था है उसकी अध्यक्षता भी भारत इस बार करेगा। बजट पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हमने कोरोना काल में एक होने का काम किया, जनता को एक करने का काम किया। ये मुझे कई रूप में कभी-कभी हर्ट करता है और मैं अपना सर झुकाती हूँ प्रत्येक भारतीय नागरिक के सामने जिनको एक बड़े कठिन वर्ष का सामना करना पड़ा है। अब मैं आत्मनिर्भर भारत के विजन को सामने रखना चाहूंगी। आत्मनिर्भर भारत वैसे में एक नया आइडिया नहीं है, ये सेल्फ रिलायंस से जुड़ा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत is an expression of the 130 crore Indians who have full 130 करोड़ भारतीय की जो इंस्पिरेशन है, जो उम्मीदें हैं, उनका प्रतीक है आत्मनिर्भर भारत। 130 करोड़ भारतीय जो कि स्किल में, हुनर में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। Are realities today due to India's efforts.
The proposals in भारत सही मायनों में will संभावना और further उम्मीदों से strengthen भरा the देश है। संकल्प of nation first, doubling farmers' income, strong किसानों की आय को दुगना करना है, राष्ट्र को पहले रखने good का governance, के लिए के प्रति प्रतिबद्धता opportunities for जतानी youth, है, education for all, युवाओं को मौके women देने हैं, empowerment, and inclusive वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान देना है, सबके लिए एजुकेशन, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो also on the path to fast और implementation समावेशी विकास हो। 13 इसके अलावा अन्य promises चीजों में भी ये सब in the चीजें budget शामिल हैं 2015-16, which were to materialize during the Amrit Mahotsav of 2020. 2015-2016 में जो हमने बजट बनाया था, तब से हमने ये सोचा था कि इन सब चीज़ों पर हम तेज़ी से अमल लाने The की budget कोशिश करेंगे। proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, बजट जो हमारा है 2021-22 का, वो 6 पिलर्स पर, 6 inclusive आधार development बिंदुओं for पर आधारित aspirational है। India, एक हेल्थ है, reinvigorating स्वास्थ्य है, human capital, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करना है, government and एक maximum ह्यूमन कैपिटल को एक तरह से नए सिरे से पुनर्जीवन करना है, इनोवेशन यानी कुछ नई पहल करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है और मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात होनी है। पहले पिलर की बात करते हैं कि हेल्थ की बात, और सब स्वस्थ रहें। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि हम और ज़्यादा इसमें पैसा लगाएंगे। इसमें हम 3 क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, प्रिवेंटिव केयर पर, क्यूरेटिव केयर पर, यानी बीमारी फैले ही नहीं इसकी तरफ ध्यान देना है, बीमारी फैल जाए तो उसके इलाज की तरफ ध्यान देना है, और मनुष्य स्वस्थ रहे उसकी तरफ ध्यान रखना है। हेल्थ सिस्टम जो है उसको, ये सेंट्रली केंद्र द्वारा संचालित स्कीम है जो कि लॉन्च की जाएगी, जिसके लिए 64,188 करोड़ रुपए अगले 6 साल में खर्च किए जाएंगे। ये प्राइमरी हेल्थ सिस्टम में सुदृढ़ता लाएगी, जो अभी जो राष्ट्रीय संस्थान है उनको और ज़्यादा मजबूत करेगी, और नई और उभरती हुई जो नई बीमारियां हैं जिनकी आशंका है उनके इलाज की तरफ हम ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 17,000 वेलनेस सेंटर का सहयोग लिया जाएगा। सभी जिलों में देश के इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य लैब, स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की होगी। 602 डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक्स के अंदर क्रिटिकल केयर अस्पताल खोले जाएंगे, 12 केंद्रीय संस्थान खोले जाएंगे। बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए एक नेशनल सेंटर जो बना है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स एंड स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट, 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को ऑपरेट का संचालन शुरू हो जाएगा। 11 seaports and 7 land crossings। 32 एयरपोर्ट पर, 11 बंदरगाहों पर और 7 ऐसे जो लैंड के जरिए जो भूमि मार्ग से आते हैं वहां पर इस तरह की चीजें भी सेट की जाएंगी। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और 2 मोबाइल अस्पतालों का भी गठन किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल सेंटर फॉर हेल्थ, इसका भी गठन होगा। 7 बायो सेफ्टी लेवल के 3 लैब और 4 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संस्थान वायरोलॉजी के क्षेत्र में इनकी भी स्थापना होगी। अब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। पोषण अभियान की, पोषण अभियान की हमने शुरुआत की है। An intensified strategy to improve nutritional outcomes across 112 aspirational districts. 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का हमने चयन किया है उसमें पोषण को और ज्यादा सुदृढ़ किया जाए, उस व्यवस्था को, उस पर हम जोर दे रहे हैं।
as a साफ prerequisite पानी to सबको achieving मिल सके, इसका universal अभियान भी हमने शुरू The किया है। Jal Jeevan Mission स्वच्छता और की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं, स्वच्छ It और aims at पर्यावरण universal शुद्ध हो water supply उस तरफ भी in ध्यान all दे रहे हैं। जल जीवन मिशन 4,378 urban local हमने bodies इसी with 2.8 बात को ध्यान में रखकर, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरू किया था, जिसमें सभी शहरी और जो स्थानीय निकाय के जगह हैं और 2.86 करोड़ जो हाउस होल्ड हैं उन सबको शुद्ध पेयजल पहुंचाना हमारा मकसद है। 500 अमृत सिटीज़ में जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उस तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। अगले 5 साल में इस पर 2,87,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की तरफ हम और आगे बढ़ रहे हैं। शहरी भारत में स्वच्छता अभियान तेजी से चलाया गया है। अब ये जो कचरा है, कचरे का प्रबंधन करना है, वायु प्रदूषण में कमी लानी है और जो कचरा है उसको प्रभावी ढंग से उसका मैनेजमेंट किया जा सके ताकि उसका काम कंस्ट्रक्शन निर्माण में हो सके, उसका काम दूसरी तरह के चीज़ों में आ सके और जो डंप साइट हैं जहाँ कचरा इकट्ठा होता है वहाँ पर भी उन डंप साइट्स को धीरे धीरे खत्म किया जाए, इस तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए 1,78,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में रखने का मैं प्रस्ताव रखती हूँ। क्लीन एयर, साफ हवा, इसके लिए मैं प्रस्ताव कर रही हूँ कि 2,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्चा किया जाएगा, जिससे 4 करोड़ लोगों को जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी की बात करते हैं। इसमें जो पुराने वाहन हैं जो प्रदूषण बहुत ज़्यादा करते हैं उनको स्क्रैप करने की दिशा में, यानी उनको कंडम घोषित करना, वो सड़कों पर नहीं चल सकें, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। और ऐसे में जो नए वाहन होंगे जो ईंधन का बेहतर इस्तेमाल हो ताकि हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट है वो भी उसमें थोड़ी सी कमी आ सके। जितनी व्हीकल हैं उन सबको ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर के तहत उनका फिटनेस टेस्ट होगा और ख़ास तौर से जो व्यावसायिक वाहन है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट वैक्सीन है, कोरोना का वैक्सीन है। ये पूरे देश भर में, अभी तक 5 राज्यों तक सीमित था, पूरे देश भर में इसका विस्तार किया जाएगा। माननीय महोदय स्पीकर साहब, वैक्सीन टीकाकरण के लिए इस साल हमने 35,000 करोड़ रुपए रखे हैं। मैं प्रतिबद्ध हूँ इसके लिए। अगर और ज़्यादा खर्च की और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी तो वो भी सरकार देगी। In this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores। 94,000 करोड़ रुपए पिछली बार हेल्थ सेक्टर के लिए रखे गए थे, इस बार 2,38,000 करोड़ इसके लिए रखे गए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले 135% ज़्यादा है। इनका विस्तार एनेक्सर 1 जो मेरी स्पीच का है उसमें आप देख सकते हैं। अब मैं दूसरे पिलर की तरफ बढ़ती हूँ। आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इनकम इंसेंटिव स्कीम, यानी उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन देने की जो योजना है वो हमने शुरू की है। हम चाहते हैं कि भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जो निर्माण का क्षेत्र है वो दहाई की संख्या के हिसाब से आगे बढ़े। To achieve all of the above, PLI schemes to create manufacturing global champions for an PLI स्कीम की भी हमने शुरुआत की है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात कर रही हैं। इससे हम निर्माण के क्षेत्र में ग्लोबल चैंपियन बनना चाहते हैं। Starting this financial year, this initiative will help bring scale and size in key sectors, create and nurture global champions, and provide jobs to our youth.
इससे युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरियां भी मिल सकेंगी। टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग की बात, कपड़ा उद्योग भारी पैमाने पर निवेश आकर्षित करता है। एक बड़ा मेगा टेक्सटाइल पार्क का गठन किया जाएगा। इसमें विश्व स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे को सामने रखा जाएगा। इससे हम एक्सपोर्ट कपड़ा उद्योग में निर्यात के क्षेत्र में ग्लोबल चैंपियन बनने की दिशा में बढ़ सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा, राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिसकी घोषणा 2019 में दिसंबर 2019 में की गई थी। 6,335 परियोजनाओं के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब इसमें 7,400 परियोजनाएं शुरू कर दी गई हैं, इनको जोड़ दिया गया है। 110 लाख करोड़ की 217 प्रोजेक्ट खत्म हो चुके हैं। NIP के तहत जो स्पेसिफिक टारगेट, जो स्पेसिफिक लक्ष्य, खास लक्ष्य हमने रखे थे, वो अगले कुछ साल में पूरी तरह से हम उन लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा हमें चाहिए खर्चने के लिए, जो सरकार और वित्तीय सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र दोनों से मिलेगा। इस बजट में मैं प्रस्तावित करती हूं कि अगले 3 साल में हम इस तरह के जो कॉन्क्रीट कदम है वो उठाएंगे। हम इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स इकट्ठे खड़े करेंगे और उसके बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर शेयर का है, जो सेंट्रल में और स्टेट के बजट का है, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग, इसके लिए एक नया बिल लाया जाएगा जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए हमने रखे हैं। of at least 5 lakh crores for this DFI within 3 years time. 5 लाख करोड़ रुपया इसके लिए कम से कम रखा जाएगा Financing of InvIT अगले 3 सालों में by foreign portfolio investors will be enabled by making suitable amendments in the relevant legislation. फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर हैं, जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, उस दिशा में भी हम कुछ काम कर रहे हैं। इनके लिए फंड इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। इंफ्रा और रियल एस्टेट सेक्टर भी इसमें शामिल है। Monetizing operating public infrastructure assets is a very important financing option for new जो पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियां हैं, इनके लिए इनमें पैसा लगाना एक बड़ा जरूरी हमारे पास एक वित्तीय विकल्प है। एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये योजना शुरू की जाएगी। एक एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड का गठन किया जाएगा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो निवेशकों की मदद करेगा, पूंजी लगाने वालों की मदद करेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरी संस्थाओं ने दोनों ने मिलकर इसके लिए पैसा देने का वादा किया है। Are being transferred to the NHAI InvIT. Similarly, transmission assets 5,000 करोड़ रुपया इसके लिए NHAI को ट्रांसफर किया गया है। PGCIL को 7,000 करोड़ इसी तरह ट्रांसफर किए गए हैं। रेलवे की बात करें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वो शुरू हो गया है और इससे भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगले चरण में
एयरपोर्ट हैं उनको भी मोनेटाइज किया जाएगा निवेश के क्षेत्र में और परिसंपत्तियों के क्षेत्र में। CGCL, 3 oil and gas pipelines of GAIL, Gas Authority of India Limited, IOCL and HPCL, 3 कंपनियों की गैस पाइपलाइन Authority of India Airports in Tier 2, NHI के तहत जो जहां पर टोल लगती है सड़कों पर, warehousing, इनका विस्तार 2 से 3 शहरों में गैस पाइपलाइनों का किया जाएगा। and NAFED among others, and sports stadium. सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन को भी रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो संपत्तियां हैं उनके साथ जोड़ा जाएगा। स्पोर्ट्स के स्टेडियम भी जोड़े जाएंगे। 2020-2021 में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 4.12 लाख करोड़ रुपए रखे थे विकास के लिए। एक तरह से सरकार का खर्च 4.39 lakh crores, which I have provided. इस साल हम प्रस्ताव करते हैं कि 4.39 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 2021-22 का सवाल है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्च इसके लिए 5.54 लाख करोड़ रुपए रखे जाएंगे, जो पिछली बार के मुकाबले 34.5% ज्यादा है। Budget head of the Department of Economic Affairs to be provided for projects, programs or departments that show good progress in capital expenditure and are in need of further funds. Over and above this expenditure, विभाग हैं जो इसमें दिशा में और ज्यादा काम करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्षेत्र में, उनके लिए 44,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा। इसके साथ साथ राज्य सरकारों को भी खर्च के लिए पैसा दिया जाएगा और ऑटोनोमस बॉडी जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उनके लिए भी पैसे की व्यवस्था की जाएगी। आधारभूत ढांचे के गठन के लिए हम एक कैपिटल मैकेनिज्म की दिशा में काम करेंगे। 3.3 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 13,000 किलोमीटर नए राजमार्गों का गठन किया गया है। ये परियोजनाओं के लिए ये काम ठेके पे दिया गया है। ये काम भारतमाला योजना प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। 8,000 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। मार्च 2022 तक इसमें 11,000 किलोमीटर और जोड़ दिए जाएंगे। More economic corridors are also being planned. Some are और ज्यादा इकोनॉमिक कॉरिडोर 3,500 किलोमीटर संरचना हो, इस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। In the state of Tamil Nadu at an investment of 1.03 lakh crores. 1.03 लाख करोड़ रुपया का निवेश इसके लिए तमिलनाडु में किया जाएगा। मदुरई कोल्लम कॉरिडोर, इसमें मदुरई कोल्लम कॉरिडोर एंड कंस्ट्रक्शन विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर। तिचूर का कॉरिडोर सेकेंड शामिल है और अगले साल इसमें निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। केरल में 1100 किलोमीटर का नया राष्ट्रीय राजमार्ग का काम शुरू किया जाएगा। इस पर कुल मिलाकर 65,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर के 600 किलोमीटर भी इसमें शामिल होगा। पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कोलकाता इसमें जो मौजूदा सड़कें अभी से हैं उनको भी अपग्रेड करने का काम होगा। कलकत्ता सिलीगुड़ी वाला जो राजमार्ग है उस पर ध्यान दिया जाएगा। 19,000 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे से संबंधित परियोजनाएं इस समय चल रही हैं। 34,000 करोड़ रुपया खर्च करके
3000 किलोमीटर से ज़्यादा के नए राजमार्ग बनाए जाएंगे अगले 3 सालों में। Other important projects that would see considerable activity in 2021-22 are in Annexure 2 to my 2021-2022 में कुछ ऐसे फ्लैगशिप कॉरिडोर पर भी काम होता आप देख पाएंगे। इसके बारे में एनेक्सर 2 मेरी जो स्पीच का हिस्सा है उसमें आप विस्तार से देख सकते हैं। 1,18,000 करोड़ रुपए हमने रोड ट्रांसपोर्ट सड़क परिवहन की दिशा में काम करने के लिए रखे हैं। ये अभी तक का सबसे ज्यादा पैसा है जो खर्च किया जा रहा है।